So now students, you have understood the concept of domestic income and national income, and along with that you have also understood the concept of normal resident of the country and the domestic territory of the country. Now we can appreciate the difference between domestic income and national income. So let's see, what's the difference between domestic income and national income? But a domestic income, as I told you yesterday or in previous lecture also, domestic income refers to the income, factor incomes earned within domestic territory of the country during an accounting year, no matter who generates this income. While estimating domestic income, we include factor incomes which is generated within domestic territory of the country. Here we are not concerned with whether this factor income is generated by normal resident or not. We are just concerned with the factor income should be generated within the domestic territory of the country, right? Whereas national income refers to the sum total of factor incomes earned by normal residents of the country. Here we take the factor income of normal resident, no matter where it is generated. We are not concerned कि ये जो income है, factor income है, ये कहाँ generate हुई है? क्या ये domestic territory में generate हुई है या ये domestic territory के बाहर generate हुई है? We are only concerned with that it is generated by the normal residents of the country. ठीक है? So this becomes your first difference. You can write it. So another difference becomes that domestic income does not include net factor income from abroad, whereas national income includes net factor income from abroad. So basically, what is net factor income from abroad? For that, we will have to see the conversion of domestic income into national income or vice versa. We'll come to that in a little while. Now, beta, we are doing the various concepts of national income. And you should also know that national income is same thing as national product, because whatever is produced in the economy, it takes the form of income generation. So we generally use these words income and product interchangeably. National product is equal to national income. Now, our national income can be estimated in gross terms as well as in net terms. So gross national income basically is inclusive of depreciation. हमने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में किया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो ग्रॉस वर्ड इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन. सो व्हेनेवर वी एस्टिमेट ग्रॉस नेशनल इनकम, it is inclusive of depreciation, which means कि जब प्रोडक्शन करते हुए कैपिटल एसेट्स में, कैपिटल एसेट्स की जो वियर एंड टीयर हुई है, ठीक है, जो उनकी डेप्रिसिएशन हुई है, उसको हमने कंसिडर नहीं किया, राइट? हमने नेशनल इनकम या प्रोडक्शन की वैल्यू को एज इट इज लिया है, उसमें से हमने कैपिटल एसेट्स की डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं किया. सो वी कैन से ग्रॉस नेशनल इनकम, यू कैन राइट इट ग्रॉस नेशनल इनकम, ब्रैकेट में लिख लो GNI इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, या इट इज एस्टिमेटेड inclusive of depreciation, whereas net national income is estimated exclusive of depreciation. Net national income is estimated exclusive of depreciation. Therefore, gross, next लाइन में लिख लेंगे हम,
ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम प्लस डेप्रीसिएशन, ठीक है, और नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम minus depreciation. So if the economy is interested in finding out gross national income, it need not deduct depreciation from it. It is inclusive of depreciation. If the country is interested in finding out net national income, then from gross national income we have to exclude depreciation, also known as consumption of fixed capital or replacement cost. Clear? This was about the gross and net concept of national income. Coming to the next concept, and that is market price and factor cost concept of national income or national product. Market price and factor cost concept of national income or national product. Now bete, national income jo hai, it can be expressed both in the terms of market price or in terms of factor cost. When it is estimated at market price, it is called as national income at market price. National income at market price, and we write it like this. And when it is estimated at factor cost, then it is expressed as national income at factor cost. As I told you बेटे, हम नेशनल इनकम को यानी जो लेवल ऑफ आउटपुट हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे रेजिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम मार्केट प्राइस पर भी एस्टिमेट कर सकते हैं और उसको हम फैक्टर कॉस्ट पर भी एस्टिमेट कर सकते हैं. मार्केट प्राइस पे जब हम उसको एस्टिमेट करते हैं, हम कहते हैं उसका नाम होता है नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस. इसको हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? हाउ डू वी एस्टिमेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस? बेटे, जितना भी लेवल ऑफ आउटपुट होता है और जिस प्राइस पे वो मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, उस प्राइस के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड द प्राइस एट विच प्रोडक्शन इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, उस प्राइस पे जब हम उसको एस्टिमेट करते हैं तो हमें मिलता है national income at market price. But being students of economics, being students of accounts, even you know कि जिस कॉस्ट पे प्रोडक्शन होती है, सेम कॉस्ट पे मार्केट में गुड्स नहीं बिकते. Is there any difference between cost of production and market price? How many of you think that there is a difference between फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस? यानी अगर ये पेन है मेरे पास, ठीक है, ये पेन की कॉस्ट जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस पेन, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज आई, ठीक है. फैक्टर कॉस्ट इसकी 8 रुपीज है. इट इंक्लूड्स ऑल द रॉ मटेरियल कॉस्ट, इट इंक्लूड ऑल द लेबर कॉस्ट, इट इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स माई प्रॉफिट मार्जिन. कॉस्ट में मैं प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड कर रही हूँ. सब कुछ इंक्लूड करके इस पेन की कॉस्ट आ रही है 8 रुपीज. बट जब आपने इसको मार्केट में बाय किया बेटे, तो मार्केट में इसकी प्राइस है 10 रुपीज. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन 2 रुपीज एंड डिफरेंस ऑफ 2 रुपीज अमाउंट्स टू व्हाट? ये डिफरेंस किस चीज का है? मैंने 8 रुपए का प्रोड्यूस किया और आपने 10 रुपए का खरीदा मार्केट में. ये 2 रुपए का डिफरेंस आपने जो पे किया, एक्स्ट्रा पे किया, इट इज व्हाट?
Okay, one student is saying tax, another is also saying tax. Okay, one is saying profit. बेटे प्रॉफिट को तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको जब मैंने कहा 8 रुपए में मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मेरी फैक्टर रिवॉर्ड प्रॉफिट है, ठीक है। तो कॉस्ट में वो फैक्टर कॉस्ट में वो सब इंक्लूडेड है, माय प्रॉफिट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। सो व्हाई यू आर बाइंग इट फॉर 10 रुपीज इन द मार्केट, इट अमाउंट्स टू द इनडायरेक्ट टैक्स। आप इसके ऊपर एक टैक्स दे रहे हो और उस टैक्स के कारण मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से बढ़ जाता है। सबसे पहले ये समझो बेटे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस जिस प्राइस पे गुड बिक रहा है मार्केट में, फैक्टर कॉस्ट जिस कॉस्ट पे गुड्स बन रहे हैं। तो फैक्ट्री की कॉस्ट कह लो, मैं इसको सिंपल टर्म्स में हमेशा ये कहती हूँ, फैक्टर कॉस्ट मींस फैक्ट्री की कॉस्ट, ठीक है। आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर रहे हो, 8 रुपए की पेमेंट की, 8 रुपए फैक्टर कॉस्ट है पेन की, लेकिन 10 रुपए में बिका, 10 रुपए मार्केट प्राइस है। सो मार्केट प्राइस में एक चीज इंक्लूडेड होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसके कारण हमारे गुड्स का प्राइस मार्केट में आके बढ़ जाता है, यानी फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा हो जाता है। दूसरी एक और बात है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होती बेटे, वो है सब्सिडीज। सब्सिडीज कई बारी कुछ एसेंशियल गुड्स होती हैं जिनकी प्रोडक्शन करने के लिए, एसेंशियल कमोडिटी जैसे कि एलपीजी है, ठीक है। मैं अगर एलपीजी का सिलेंडर बनाती हूँ, मेरे को एक सिलेंडर की कॉस्ट जो है वो 1000 रुपीज पड़ रही है। मैं प्रोड्यूसर हूँ गैस सिलेंडर की और मुझे एक सिलेंडर को प्रोड्यूस करने में उसकी कॉस्ट आ रही है 1000 रुपीज, मेरा प्रॉफिट इंक्लूड करके। अब मैं अगर ये गैस सिलेंडर मार्केट में 1000 रुपीज का बेचूंगी, नाउ दिस गैस सिलेंडर बीइंग एन एसेंशियल कमोडिटी, यू नो अवर पीपल विल प्रोटेस्ट, वो सड़कों पे उतर आएंगे कि एक एसेंशियल कमोडिटी आप हमें 1000 रुपए की दे रहे हो, हम खाना कैसे बनाएं, हम 1000 रुपए पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगेन गवर्नमेंट सेक्टर हमारा जो है वो एक्टिव होता है, वो कहता है अच्छा जो एसेंशियल कमोडिटीज है ना, वो मुझे कहता है आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप ना ऐसे करो इसको 800 का बेचो। विल आई सेल इट फॉर 800 व्हेन माय कॉस्ट इज 1000? नो आई विल नॉट, मैं तो नहीं नुकसान उठाऊंगी। तो गवर्नमेंट मुझे कहती है आप 800 का बेचो, आपका खर्चा 1000 आ रहा है, आप 800 कंज्यूमर से लो, 200 रुपए हम आपको देंगे, हम आपके अकाउंट में डाल देंगे 200 रुपए पर सिलेंडर, ठीक है। ये क्या हुई? सब्सिडी। ये क्या हुई? सब्सिडी। इसको क्या कहते हैं? सब्सिडी। इट इज द फाइनेंशियल हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सिलेंडर मार्केट में 800 रुपए का बेच दिया। अब जब मार्केट प्राइस पे आप वैल्यूएशन करोगे सिलेंडर की तो 1000 पे करोगे ना, ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज, लेकिन इसका मार्केट प्राइस 200 से कम शो हो रहा है। वो किसका इंपैक्ट आ रहा है? सब्सिडीज का। इसका मतलब बेटे मार्केट प्राइस में एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंपैक्ट आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण जो है मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, और दूसरा सब्सिडीज का इंपैक्ट आता है, जिसके कारण बेटे जो हमारा मार्केट प्राइस है वो रिड्यूस्ड शो होता है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, अपने प्रोडक्शन की फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो हमें उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण हमारा प्राइस, ये जो पेन है इसकी कॉस्ट क्या थी? 8 रुपए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कितने का मिला? 10 रुपए का। 10 रुपए क्या है? मार्केट प्राइस है। अगर मुझे इसकी फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मैं इसमें से मार्केट प्राइस में से 2 रुपए माइनस कर दूंगी। 2 रुपए क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो इफ वी हैव टू एस्टिमेट
national income at factor cost, or we have to see the relationship between national income at factor cost and national income at market price. So 10 रुपए वाला पेन जो है उसकी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मैं 2 रुपए माइनस कर दूंगी. अब ये 2 रुपए क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारा मार्केट प्राइस बढ़ा हुआ था. अब दूसरी बात, मेरा गैस सिलेंडर कितने का प्रोड्यूस हुआ? 1000 का, लेकिन मार्केट में कितने का बिक रहा है? 800 का, है ना. लेकिन फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है. कितने अमाउंट से फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है? 200 रुपीज से. 200 रुपीज क्या है बेटे? सब्सिडीज हैं. So if we want, we have estimated our national income at market price, but we want to know the national income at factor cost. We will deduct indirect taxes from it and we will add subsidies to it. Rest we will do tomorrow. And